لیے ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور خدا کے کلام سے ہم حوالہ دیکھیں گے پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب اور زبور نمبر 103 اور اس کی پہلی 5 آیات. زبور کی کتاب زبور نمبر 103 اور اس کی پہلی 5 آیات. اور یہاں پر لکھا ہے اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے. وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے. وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے. وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے. تو عقاب کی مانند عصر نو جمع ہوتا ہے. خدا کے کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خدا کی برکت ہو. سب کہیں آمین. تشریف رکھیں. خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. خدا آپ سب کو برکت دے. میں آپ سب کو خدا کے گھر میں آج آپ کی نجات کے اس دن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہم اس پورے مہینے میں شکر گزاری کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اور یہ مہینہ جو ہے جسے ہم نے اپنے لیے شکر گزاری کا مہینہ ٹھہرایا ہے اس میں ہم نے شکر گزاری کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا. سب سے پہلے ہم نے سیکھا کہ ہمیں شکر گزاری کیوں کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے. اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ شکر گزاری کے پھل کیا ہیں اور آج جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ شکر گزاری کا مقصد اور اس کی قوت ہے. The purpose and the power of thanksgiving. سوال یہ ہے کہ ہم خدا کی شکر گزاری کیوں کرتے ہیں اور جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہوتا ہے. ابھی ہم نے خدا کے کلام میں سے زبور 103 اور اس کی پہلی 5 آیات کا مطالعہ کیا اور جب ہم نے یہ پڑھا تو یہاں پر ہمیں چند ایک چیزیں ملتی ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں جو ہماری زندگی میں وقوع پذیر ہوئی اور جن کی بنا پر ہمیں شکر گزاری کرنی ہے. پہلی بات ہم نے دیکھا خدا کے کلام میں دوسری آیت میں لکھا ہے اس کی کسی نعمت کو his benefits ہمیں شکر گزاری کرنی ہے اس کی نعمتوں کے لیے. ہمیں شکر گزاری کرنی ہے اس کی معافی کے لیے کیونکہ تیسری آیت میں لکھا ہے وہ تیری بدکاری کو بخشتا ہے. forgive it. اس کے بعد دوسرے حصے میں تیسرے باب کی لکھا ہے وہ تجھے تیری ساری بیماریوں سے شفا دیتا ہے. healing. اس کے بعد وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے. اس نے ہمیں ڈسٹرکشن سے بچایا, ہلاکت اور بربادی سے بچایا, اس لیے ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی ہے. پھر لکھا ہے کہ وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے. crowned with kindness and mercy. خدا کی مہربانی اور خدا کا رحم ہماری زندگیوں پر ہے اس لیے ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی ہے. اس کے بعد 5ویں آیت میں لکھا ہے وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے. for our satisfaction ہماری آسودگی کے لیے ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے. اور آخری بات لکھا ہے کہ وہ عقاب کی مانند تجھے اثر نوجمع کرتا ہے یا تو عقاب کی مانند اثر نوجمع ہوتا ہے یعنی رینیوئنگ نیا پر. وہ ہماری
जिंदगी में एक नए पल को लेकर आता है। Thanksgiving for his benefits, for his goodness, for his healing, और हमारी डिस्ट्रक्शन से उसने हमें सेव किया। फिर उस क्राउन के लिए, उस ताज के लिए जो उसकी रहमत का, उसकी शफकत का है, फिर आसूदगी के लिए जो हमारी जिंदगी में वो देता है, और फिर हमारे नए पल के लिए जो वो हमारी जिंदगी में लाता है। शुक्रगुजारी मसीही जिंदगी की सबसे अहम और खुसूसी जो है वो बात है और एक अहम काम है। अगर हम पौलुस रसूल का पहला काम कर थिस्सलुनीकियों के नाम उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह खुदावंद में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। यानी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात में हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। और पहले मैसेज में फर्स्ट संडे में हम ये सीखा था कि जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो जो पहला काम हमारी जिंदगी में होता है वो है एहसानमंदी। यानी हम खुदा के एहसानमंद होते हैं कि उसने हम पर अपना फजल किया। दूसरी बात जो शुक्रगुजारी के बाद हमारी जिंदगी में आती है वो है हलीमी। यानी हम लोग अपने आप को झुकाते हैं, फरोतन बन जाते हैं, और जिस किसी ने भी हमारे लिए कुछ अच्छा या बड़ा काम किया हो हमें हमेशा उसका थैंक्स करना है, उसका शुक्रिया अदा करना है ताकि हम उसके एहसानमंद हो। जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो दो चीजें शुक्रगुजारी में शामिल होती हैं। पहली बात, उसका मकसद क्या है, शुक्रगुजारी का मकसद, और दूसरी बात कि शुक्रगुजारी की कुव्वत क्या है। और आज ये दोनों बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, शुक्रगुजारी के मकसद और शुक्रगुजारी की कुव्वत, द पर्पस एंड द पावर ऑफ थैंक्सगिविंग। और ये बड़ा जरूरी है कि हम इस बात को सीखें। पहली बात, जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो उसका जो पहला मकसद है वो ये है कि हम देख सकते हैं कि खुदा हमारे लिए क्या कर रहा है। To show that we can see what God is doing. हम देख सकते हैं कि खुदा हमारे लिए क्या कर रहा है। और अगर आप ये नहीं देख रहे कि खुदा हमारे लिए क्या कर रहा है तो फिर इस बात को जानने आप अंधे हैं। हम जानते हैं खुदा के रहम को, हम जानते हैं खुदा के दर्श को, हम जानते हैं खुदा की मोहब्बत को, हम जानते हैं खुदा के फजल को, हम जानते हैं खुदा की शफकत को। और जब हम सब कुछ जानते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि हमारा खुदा हमारे लिए सब कुछ करता है। हम ये भी जानते हैं कि आसमान और जमीन का बनाने वाला और इस जमीन पर जो कुछ भी है उसका खालिक और उसका मालिक हमारा खुदा है। हम ये भी जानते हैं कि हमने जो जान है, जो दम है, जो सांस है, ये भी उसी का दिया हुआ है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो इंसान है, चाहे वो माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बीवी है, शौहर है, बेटा है, बेटी है या कोई और है, इन सब का खालिक और इन सब का देने वाला हमारा खुदा है। हम ये भी जानते हैं कि खुदा ही है जो हर सुबह हमें उठाता है और हर रात हमें सुलाता है। खुदा ही है जो हर दिन हमें 3 बार खाने को देता है। खुदा ही है जो हमें शराबती बख्शता है और खुदा ही है जो हमें जिंदगी और सेहत तंदुरुस्ती देता है। जब इतना कुछ हम जानते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि खुदा हमारे लिए क्या करता है। और मैंने पहले कहा कि अगर आप नहीं देखते तो फिर आप क्या हैं, अंधे हैं। और अगर आप ये नहीं देख रहे कि खुदा आपके
खुदा आपकी जिंदगी में क्या करने वाला है, जब आप प्रेजेंट में नहीं देख रहे तो आप फ्यूचर में भी नहीं देख सकेंगे। इस बात को जाने। आज हम जो नहीं होता उसको देखकर बुड़बुड़ाते हैं। आज जो हमारे पास नहीं है, जो नहीं दिया गया, जो नहीं हासिल हुआ, जो नहीं पाया, जो नहीं मिला, हम उसको देखकर बुड़बुड़ाते हैं, उसको देखकर इल्जाम तराशी करते हैं। मगर जो है हम उसे देखकर खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते। अगर आप खुदा के किए हुए कामों के बारे में अंधे हैं तो फिर याद रखें, खुदा चाहे आपके लिए कुछ भी कर ले, आप उसे नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि आप अंधे हैं। क्या अंधे को नजर आता है? हमारा अंधापन, इस बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। हमारा अंधापन हमें खुदा की कुदरत और उसके कामों को देखने से रोकेगा। आज हमें इस बात को समझना है कि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो हम इस बात का इकरार करते हैं, क्या मेरे खुदा तू जो कुछ मेरी जिंदगी में कर रहा है या तूने जो कुछ मेरी जिंदगी में किया है वो मैंने देखा है और वो मैं देखता। तो पहली बात, शुक्रगुजारी का पर्पस क्या है, मकसद क्या है? कि हम देख सकते हैं कि खुदा हमारे लिए क्या कर रहा है। दूसरा मकसद, जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो यह दिखाने के लिए कि जो हमारे लिए कर रहा है, यानी खुदा जो हमारे लिए कर रहा है वो मामूली नहीं है। हम लोग खुदा को मामूली समझते हैं, हम लोग खुदा के कामों को मामूली समझते हैं, लेकिन याद रखें जो कुछ खुदा हमारे लिए करता है ना तो वो खुद मामूली है और ना उसके काम मामूली है। ये हमारी जिंदगी में बड़ी अहम बात होनी चाहिए। मेरा खुदा मामूली नहीं है, मेरा खुदा कुदरत वाला कादिर मुतलक खुदा है। क्योंकि खुदा की मोहब्बत, किसी इंसान की मोहब्बत चाहे आपके लिए जोश मारे या ना मारे, किसी इंसान की मोहब्बत चाहे आपके लिए दर्द उसके दिल में पैदा करे या ना करे, लेकिन खुदा की मोहब्बत आपके लिए बड़े बड़े काम करती है। और उसका सबूत यूहन्ना की इंजील में मेरे और आपके लिए जो है वो लिख दिया गया कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर, दुनिया में किसी और माबूद, किसी और नबी ने अपना बेटा नहीं दिया, ना अपने आप को पेश किया कि मैं तुम्हारे लिए कुर्बान होने को हूं। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे आसमानी बाप और मेरे खुदा यीशु मसीह का रहम, फजल और मोहब्बत है कि आसमानी बाप ने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, और बेटे ने अपने आप को इस जमीन के लिए दे दिया कि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि। इसलिए जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम लोगों को ये दिखाएं कि ना तो हमारा खुदा मामूली है ना उसके काम मामूली है। तीसरी बात, जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो हमें ये बात लोगों को बताने की जरूरत है कि जो कुछ खुदा हमारे लिए कर रहा है हम उससे भूले नहीं। To show that we are not forgotten what God is doing. We are not forgotten. हम भूले नहीं हैं, और जो कुछ खुदा हमारे लिए करता है हमें उसे भूलना भी नहीं चाहिए। इस बात को समझें।
آج دنیا میں سب سے آسان کام کیا ہے؟ بھول جانا. سب سے آسان کام. اس میں نہ تو پیسہ لگتا ہے نہ اس میں محنت لگتی ہے. آج انسان خدا کے رحم کو، اس کی نعمتوں کو، اس کی برکتوں کو، اس کے فضل کو، اس کے کفارے کو، اس کی قربانی کو بھول چکا ہے. آج انسان خدا کو بھول چکا ہے. آج اگر آپ لوگوں کے لیے کچھ اچھا کریں یا بھلائی کا کام کریں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ کچھ دیر بعد آپ کے کاموں کو یا آپ کو بھول جائیں گے. اور بعض تو اتنے اچھے ہوتے ہیں، ایسا رویہ اپناتے ہیں کہ سامنے کھڑے بھی ہوتا ہو تو وہ ایسا شو کرتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ ہمیں جیسے جانتے ہی نہیں ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب ہم شکر گزاری کریں تو دراصل ہمیں اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ خدا ہم ان کاموں کو نہیں بھولے، ہم ان کاموں کے کام کرنے والے کو نہیں بھولے جس نے یہ ساری بھلائی ہمارے لیے کی ہے. ہم خدا کو نہیں بھولے جس نے ہم پر فضل اور رحم کو نازل کیا. ہم خدا تیرے احسانوں کو نہیں بھولے جو تو نے زندگی بھر میرے اوپر کیے. ذرا سی آزمائش کی سوئی چبھتی ہے اور ہم لوگ درد سے کراہ اٹھتے ہیں، لیکن جو آرام اور راحت کی زندگی کو دیتا ہے ہم اس کو یاد نہیں کرتے. اور یہ میرے اور آپ کے لیے انتہائی دکھ کی بات ہے. ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جو کچھ خدا ہمارے لیے کر رہا ہے ہمیں اسے نہیں بھولنا. چوتھی بات، جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس جو بھی طاقت ہے، زور ہے، ہمارے پاس جو بھی حکمت ہے، ہمارے پاس جو بھی قابلیت ہے اور ہمارے پاس جو بھی وسائل ہیں وہ ہمارے وسیلے سے نہیں، وہ ہمارے اپنے نہیں اور نہ ہم ان کے مالک ہیں. آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے، آج جو کچھ بھی میں ہوں، آج جو کچھ بھی خدا نے مجھے دیا ہے، میری پوزیشن، میرا نام، میرا مقام، میری حیثیت، میرا خاندان، میری حکمت، میرے وسائل، میری قابلیت، میری علمیت، جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ نہ میرے زور سے، یہ نہ میری طاقت سے، یہ نہ میری علمیت سے، بلکہ یہ سب کچھ میرے خدا کی طرف سے. آج ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے، اس قابلیت کا مالک خدا ہے. ہم بعض اوقات یہ بات کرتے ہیں لو جی منڈے سے بڑی ایبلٹی ہے، کڑی سے بڑی ایبلٹی ہے، پر یہ بھول جاتے ہیں یہ ایبلٹی کہاں سے آئی ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں یہ ایبلٹی کس نے دی ہے. وزڈم کی بات کریں تو ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وزڈم کہاں سے آیا. جب ہم لوگ وسائل کی سورس کی بات کریں تو ہم بھول جاتے ہیں یہ سورس کہاں سے آئے. جب ہم لوگ اپنے لیے پاور کی بات کریں، رتبے کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں میں بڑا طاقتور، میں بڑا زوراور، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی. یہ پاور، یہ وزڈم، یہ سورس، یہ ابیلٹیز، یہ سب کچھ جو ہے یہ میرے خدا کی طرف سے. ہر ایک چیز بائبل مقدس میں ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں، یعقوب کے خط میں لکھا ہے ہر اچھی چیز اور بخشش نوروں کے بعد یعنی آسمان سے تمہیں ملتی ہے. ہر اچھی چیز جو بھی آپ کے پاس ہے، سب کچھ جو ہمارے پاس ہے
یہ ہماری قوت یا ہمارے زور کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کی رحمت ہے جو ہمیں اس سے ملا ہے۔ اور جو کچھ میری زندگی میں ہے وہ میری طرف سے نہیں، میں اس کا ذریعہ نہیں ہوں، اس کا ذریعہ دینے والا آسمان پر میرا بیٹھا ہے۔ اس لیے جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں تو اس بات کا اظہار کریں کہ میری حکمت، میری علمیت، میرے وسائل، میری قابلیت، جو کچھ بھی ہے یہ خداوند کی طرف سے ہے۔ نمبر 5، جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو اس بات کی تصدیق کرنا ہے کہ سب باتوں کے لیے، سب چیزوں کے لیے ہمارا انحصار we totally depended on God، ہم خدا پر انحصار کرتے ہیں، اس کی رحمت پر ہے۔ یعنی سب چیزوں کے لیے ہمارا جو انحصار ہے وہ خدا کی رحمت پر ہے۔ داؤد زبور میں لکھتا ہے، خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت۔ اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب تک تمہیں آسمان سے نہ ملے تم کچھ حاصل۔ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند اگر تو ہماری مدد نہ کرتا تو میں بے یار و مددگار پڑا رہتا، اگر تو میری مدد نہ کرتا تو خداوند میں بے یار و مددگار ٹھوکریں کھاتا۔ لیکن تیرا شکر ہو، خدا کا شکر ہو کہ خداوند تو نے مجھ بے یار و مددگار کی مدد کی، اور خداوند تو نے میری ڈیپینڈنسی کو، میرے انحصار کو تو نے اس کو رد نہیں کیا، بلکہ جب میں تجھ پر انحصار کرتا ہوں، تجھ پر توکل کرتا ہوں، تو میرے توکل پر پورا اترتا ہے۔ اس لیے شکر گزاری کرنے کا 5واں جو مقصد ہے وہ یہ ہے، اس بات کا اقرار کرنا کہ خداوند سب باتوں، سب کاموں کے لیے میرا توکل تجھ پر ہے۔ چھٹی بات، جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہمیں جلال دینا ہے، اور جلال صرف اس کو دے جو اس جلال کے لائق ہے۔ شکر گزاری ہمیں اس بات کے بارے میں تقویت دیتی ہے کہ ہم صرف اس کو جلال دیں جو ہمارے لیے کام کرتا ہے، جو ہمارے لیے مہیا کرتا ہے، جو ہمارے لیے قدرت کو جاری کرتا ہے، جو ہمارے لیے ناممکن کو ممکن کرتا ہے، جو جلال کے لائق ہے، کیونکہ سارا جلال اس کا ہے۔ سارا جلال، زمین کا جلال، آسمان کا جلال، خداوند کا جلال، سارا جلال اس کا ہے۔ ابتدا وہ ہے، انتہا وہ ہے، اول وہ ہے، آخر وہ ہے، الفا وہ ہے، اومیگا وہ ہے۔ آسمان اور زمین کا وہ اختیار اس کا ہے۔ اس کے بائبل کہتی ہے اسے جلال دو جو جلال کا بادشاہ ہے۔ گیت گاتے ہیں، سارا جلال یسوع، سارا جلال یسوع، ساری ستائش یسوع۔ تو کسے جلال ملے؟ یسوع کو، کیونکہ جلال کا بادشاہ وہ ہے۔ ساتویں بات، جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہمارے تمام معاملات میں خدا کی مسلسل مداخلت یہ ہمارے ایمان کا اظہار ہے۔ یعنی ہمارا ایمان یہ ہے کہ خدا ہماری زندگی کے ہر ایک حصے میں اپنی مداخلت کو جاری کرتا ہے۔ ہمیں فزیکلی ہیلپ کی ضرورت ہے، وہ فزیکلی ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں اسپرچولی روحانی مدد کی ضرورت
जरूरत है वो रूहानी तौर पर हमारे साथ है। हमें खानदानी मदद की जरूरत है, वो खानदानी तौर पर हमारे साथ है। हमें माली तौर पर खुदा की जरूरत है, वो माली तौर पर हमारे साथ है। एजुकेशनल प्रॉब्लम है, वो उस एरिया में हमारे साथ है। बिजनेस प्रॉब्लम है, वो उस एरिया में हमारे साथ है। तमाम मामलात में खुदा की मुदाखलत, मुसलसल मुदाखलत। खुदा हमें तनहा नहीं छोड़ता, खुदा हमसे मुंह नहीं फेरता, खुदा हमें रद्द नहीं करता, खुदा हमें फरामोश नहीं करता, बल्कि वो हमारे साथ साथ रहता है। अपने ईमान का इजहार कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि खुदा हमारे लिए सब कुछ करता है। खुदा हमारे हर एक काम में अपनी मुदाखलत को जारी करता है। वो हमें तन्हा नहीं छोड़ता, वो हमारी फिक्र करता है और वो हमारी जिंदगी के हर एक हिस्से में जब भी हम उसे पुकारते हैं वो आ मौजूद होता है। तो जब शुक्रगुजारी करते हैं हमें इस मकसद को याद रखना है कि शुक्रगुजारी करना हमारे ईमान का इजहार है कि खुदा हमारी जिंदगी के हर एक हिस्से में अपनी मुदाखलत को जारी करता है। 7 चीजें अभी आपके सामने रखी गई। हम देख सकते हैं खुदा हमारे लिए क्या कर रहा है। ये देख सकते हैं कि जो हमारे लिए कर रहा है वो मामूली नहीं है। जो कुछ खुदा हमारे लिए कर रहा है हम उसे भूले नहीं हैं। और उसके बाद हम लोग ये देख सकते हैं कि ये हमारी कुव्वत, हमारी ताकत, हमारा जोर, हमारी काबिलियत, हमारे वसाइल, इनके हम जिम्मेदार नहीं हैं, हम मालिक नहीं हैं, ये खुदा की तरफ से है। और 5वीं बात, सब चीजों के लिए हमारा इन्हिसार खुदा पर है। और 6ठी बात कि जलाल उसको मिले जो जलाल के लायक है। और 7वीं बात कि हमारा ईमान जो है वो इस बात पर है कि खुदा हमारे तमाम मामलात में अपनी मुदाखलत को जारी करता है। तो ये 6 चीजें हैं जो शुक्रगुजारी के मकसद है। और अब मैं चाहता हूं कि हम लोग देखें कि व्हाट इज द पावर ऑफ थैंक्सगिविंग। शुक्रगुजारी की जो कुव्वत है वो किस तौर हमारी जिंदगी में काम करती है। और जब हम शुक्रगुजारी की कुव्वत की बात करते हैं तो याद रखें जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो उसके बाद खुदा कुछ और नया हमारे लिए करना चाहता है। पहली बात, जब हम शुक्रगुजारियां करते हैं तो हमारी जिंदगी के मामलात में जितने भी हमारे दुश्मन हैं वो मुसलसल शिकस्त और नाकामी का सामना करते हैं। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो फिर हमारी जिंदगी के तमाम दुश्मन नाकाम हो जाते हैं, वो शिकस्त खाते हैं। अभी ज़बूर 103 में हमने देखा उसकी पहली 5 आयत में वहां पर लिखा है उसने बीमारियों को शिफा, उसने हमें हमारी बीमारियों से शिफा दी, उसने बीमारियों को शिकस्त दी, उसने हमारे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखा, उसने हमारे दुश्मनों को ज़ेर किया, उसने हमारी जान को हलाकत से बचाया, उसने हमें अपनी सी कुव्वतों को जो हमारे खिलाफ थी उन्हें गिरा दिया, उसने हमें हमारी लानतों से छुटकारा दिया, उसने हमें उकाब की माने अफसरे नौजवान किया, अफसरे नौजोर दिया। बाइबल बताती है हमें बचाया गया, हमें शिफा दी गई, हमें जोर दिया गया, दुश्मन के हाथ से छुड़ाया गया। और उन तमाम कामों में जिनमें हमने हाथ डाला खुदा ने अपनी बरकत का हुक्म साबित फरमाया। हमारे शिकस्त, हमारे दुश्मन परागंदा हुए। इसलिए जब हम शुक्रगुजारी करें तो इस बात को हमेशा याद रखें कि खुदा ने हमारे दुश्मनों को मुसलसल शिकस्त दी है। बीमार हुए, शिफा पाई, क्या हुआ? बीमारी का दुश्मन
गिरा दिया गया। बेरोजगार हुए, रोजगार मिल गया। क्या हुआ? खुदा ने बेरोजगारी का दुश्मन गिरा दिया। हमारे बच्चे बिगड़ गए, नस्लें बिगड़ गई, लेकिन दुरुस्त हो गई, खुदा की तरफ गामजन हो गई। क्या हुआ? खुदा ने उन बदरूहों को, जिन्होंने हमारे बच्चों को अपने काबू में किया था, उसने उनसे उन्हें आजाद किया। मियां बीवी के दरमियान झगड़ा, खानदानों में आपस में इंतशार, आपस में नफरतें और बहुत कुछ। क्या हुआ? खुदा ने सुलह और सलामती का जारी किया और इंतशार पैदा करने वाली बदरूहों को उसने हमेशा के लिए दूर कर दिया। खुदा अबलीस के कामों को बर्बाद करता है, वो उसके मंसूबों को नाकाम करता है। याद रखें, जब हम शुक्रगुजारी खुदा के जुल्म करते हैं, हम ये कुव्वत पाते हैं कि हमारा दुश्मन हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकता। अपनी नाकामियों पर बुड़बुड़ाए नहीं, अपनी कमियों पर चलाए नहीं, अपने जिंदगी के बुरे दिनों में भी खुदा की शुक्रगुजारी करते रहे। जब मिलता है शुक्रगुजारी करते हैं, जब नहीं होता खुदा को बुरा कहते हैं। इस बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। आपके पास कुछ है या नहीं? जब आप शुक्रगुजारी करेंगे, अच्छे और बुरे दोनों हालातों में खुदा आपके दुश्मनों को आपके सामने रूबरू शिकस्त देगा। ये शुक्रगुजारी की कुव्वत है जो आपकी जिंदगी के हर तरह के मामलात और हालात में खुदा आपके रूबरू आपके दुश्मनों को हलाक करता है। खुदा आपको बड़ी फतूहात देता है। याद रखें, शुक्रगुजारी दरअसल गवाही है। हम लोग आज तक ये नहीं समझ सके कि गवाही क्या होती है, और हम लोग ये भी नहीं जानते कि शुक्रगुजारी एक गवाही है। क्यों? क्योंकि जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, हम इस बात की गवाही देते हैं कि खुदा है जिसने मुझे बड़ी फतह दिलाई। और जब हम गवाही देते हैं तो फिर खुदा को सरबुलंदी हम बख्शते हैं। ये मेरे और आपके लिए बड़ा जरूरी है। ये मेरी और आपकी जिंदगी के लिए बड़ा अहम है कि हम इस बात को जानें, हम इस बात को समझें कि हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ है। हम इस बात को जानें कि हमारा दुश्मन हमें हलाक करने चाहता है। हम इस बात को जानें कि हमारा दुश्मन हमें गिराना चाहता है। लेकिन पौलुस मुकाशवा की किताब में उसके 12वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, हम बर्रा का खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस अपने दुश्मन पर गालिब आते हैं। हम बर्रे के खून और अपनी गवाही के बायस क्या होता है? अपने दुश्मन पर गालिब आते हैं। हम रूहानी जंग में हैं। तारीकी हमारे चारों तरफ गर्दिश करती है। अबलीस हमारा दुश्मन है, वो हमें गिराना चाहता है, मारना चाहता है, हलाक करना चाहता है। लेकिन हमारी गवाही और बर्रे के खून के बायस हम हर तरह के दुश्मन पर गालिब आते हैं, क्योंकि शुक्रगुजारी हमें ये कुव्वत देती है कि हम खुदा की गवाही दे सके और बर्रे के खून के वसीले अपने दुश्मन पर गालिब आए। दूसरी बात, पहली बात क्या थी कि शुक्रगुजारी की कुव्वत हमारे दुश्मनों को जो है वो शेर करती है, उन्हें शिकस्त और नाकामी का सामना करना पड़ता है। लेकिन दूसरी बात, जब हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमारे लिए क्या कर रहा है, तो हम अपने ईमान को ताजा करते हैं। हम अपने ईमान को रिफ्रेश करते हैं। हम अपने ईमान को चार्ज करते हैं। हम अपने ईमान को बढ़ाते हैं। हम अपने ईमान को सींचते हैं। देख, आज ये बड़ा जरूरी है मैं और आप इस बात को समझें। हमारे ईमान का रिचार्ज होना
हमारे ईमान का रिफ्रेश होना, हमारे ईमान का बढ़ना, ताकि खुदा हमारी जिंदगी में और ज्यादा काम करे। इससे पहले कि दाऊद जाति जूलियत को मारता, उसने एक ललकार के साथ एक बरमला ऐलान किया, इजहार किया। जब उसे कहा गया तू तो छोटा बच्चा है, तू कैसे जाएगा जाति जूलियत को मारेगा, ना तो तुझे कोई जंगी तजर्बा है, ना तेरे पास कोई ऐसा इल्म है कि तू अपने दुश्मन को जाति जूलियत को मारे। तो उसने कहा, उसने बरमला ऐलान किया कि खुदा ने इससे पहले मुझे बब्बर, शेर बब्बर और रीछ से बचाया है। जिसने मुझे शेर बब्बर और रीछ से बचाया है, जिसने मुझे शेर बब्बर और रीछ पर गलबा अता किया है, वही मुझे जाति जूलियत पर भी गलबा अता करे। इस बात को मुझे और आपको समझना है। जिस बात के लिए आप पूर्ण इत्मीनान हो, इस बात को अपनी जिंदगी में ज़हन नशीन कर लें कि मैं इस बात के लिए पूरे इत्मीनान हूं कि मेरा खुदा मुझे जाति जूलियत पर गलबा बख्शेगा। दाऊद कहता है, मैं पूरे इत्मीनान हूं कि मेरा खुदा मुझे जाति जूलियत पर गलबा बख्शेगा। क्या कर रहा है? वो अपने ईमान को ताजा कर रहा है, वो अपने ईमान को बढ़ा रहा है, वो अपने ईमान को रिफ्रेश कर रहा है। जिसने शेर पर गलबा दिया, जिसने रीछ पर गलबा दिया, जिसने शेर से बचाया, जिसने रीछ से बचाया, वो मुझे जाति जूलियत से भी बचाएगा। जब आप शुक्रगुजारी करते हैं, आप अपने ईमान को रिफ्रेश करते हैं, आपके ईमान को पावर मिलती है, चार्ज मिलता है, कुव्वत मिलती है, और फिर आप पहले से बड़े दुश्मन के बराबर उसके सामने खड़े होकर उसे शिकस्त देने की बात करते हैं। बब्बर छोटा उसे नजर आने लगा, रीछ छोटा उसे नजर आने लगा, लेकिन जाति जूलियत उनसे भी छोटा उसे नजर आने लगा। उसने कहा कि वो मारे गए तो ये भी मारा जाएगा, वो मुझे मेरे सामने ढेर कर दिए गए तो ये भी ढेर कर दिया जाएगा। जब हम शुक्रगुजारी करने में कुव्वत मिलती है, ईमान की कुव्वत, और उस ईमान की कुव्वत के वसीले हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम पानी पर चलना शुरू करें। हम इस काबिल हो जाते हैं कि बदरूह को हुक्म दें और वो जिंदगियों से निकल जाए। हम इस काबिल हो जाते हैं कि हालात को बदल कर रख दें। हम इस काबिल हो जाते हैं कि छोटी फतूहात से बड़ी फतूहात को हासिल करें। हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम अपने कमजोर ईमान से एक जोरदार ईमान को हासिल कर लें। फिर शुक्रगुजारियां हमें तकवीयत देती है, हमारे ईमान को पानी मिलता है, पानी मिलता है हमारे ईमान को, ताकि ये और बढ़े। और आज जिस कदर आपके ईमान का तना मजबूत होगा, उसी कदर आप आंधियों और तूफानों से जब टकराएंगे तो आप हमेशा कायम रहेंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तीसरी बात, जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, हमें मुस्तकबिल में खुदा की इलाही कुदरत हासिल होती है, वो कुदरत जो काम करती है हमारी जिंदगियों में, इलाही मदाखलत काम करती है। लूका की इंजील को अगर हम पढ़े 17वें बाब को, उसकी 11वीं से 19वीं आयत, तो वहां पर हमें एक कहानी मिलती है, 10 कोड़ियों की कहानी। कितनी कोड़ियों की? कितने कोड़ियों की? और ये 10 कोड़ी यीशु को रास्ते में मिले, उन्होंने बताया कि देख हम तो कोड़ी हैं। तो यीशु ने उनसे कहा, जाओ अपने टाइम जाकर काहिनों को दिखाओ। और लिखा ये 10 के 10 चल पड़े, लेकिन जब रास्ते में जा रहे थे तो एक कोड़ी ने अपने आप को महसूस किया, मैं तो शिफा पा गया,
میرا تو کوڑ جاتا رہا، میری تو بیماری جاتی رہی، میری تو ناپاکی جاتی رہی، اور لکھا ہے وہ الٹے پاؤں یسوع مسیح کے پاس آیا، بلند آواز سے اس کی شکر گزاری کرنے لگا، بلند آواز سے اس کی تعریف کرنے لگا، بلند آواز سے خدا کے نام کو جلال دینے لگا۔ یسوع نے اس سے پوچھا تم تو دس دے باقی 9 کہاں ہے؟ باقی 9 کہاں ہے؟ کیا انہوں نے شفا نہیں پائی؟ سب نے شفا پائی، لیکن شکر گزاری کے لیے صرف ایک آیا۔ یاد رکھیں، غور سے سنیے گا، آپ کی زبان آپ کو اس قابل کرتی ہے کہ آپ اپنے لیے معجزات کو حاصل کر سکیں۔ آپ کی زبان، اگر آپ کی زبان میں خدا کی تعریف ہے، اگر آپ کی زبان میں شکر گزاری ہے، اگر آپ کی زبان میں خدا کا جلال ہے، اگر آپ کی زبان میں خدا کی مدد سرائی ہے، اگر آپ کی زبان پر خدا کی بڑھوتی ہے، خدا کا جلال، خدا کی گواہی ہے، تو پھر آپ اپنے لیے معجزات دے سکتے ہیں۔ شکر گزاری آپ کو اس قابل کرتی ہے کہ خدا کی الہی قدرت آپ کی زندگی میں مداخلت کرے، اور اس بات کو جان لیں، الہی قدرت کے بغیر آپ معجزات حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے میں ہر سال اس سالانہ شکر گزاری کا اہتمام کرتا ہوں۔ ہر سال میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں، اپنی شکر گزاریاں سالانہ خدا کے حضور پیش کریں، تاکہ اس سال پیش کی گئی شکر گزاری آپ کو اگلے سارے سال میں معجزات دکھائے۔ لیکن لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ پادریوں کی طرف سے پیسہ اکٹھا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، شاید یہ پادریوں نے اپنی جیب بھرنے کا ایک نیا سسٹم بنا لیا کہ سال سے کوئی پیسے اکٹھے کرو، نومبر کے مہینے میں کرسمس بنا لو۔ یاد رکھیں، میں نے ابھی پہلے کہا، it is the activation of the next phase of divine. جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں تو آپ کے آنے والے دنوں میں، آنے والی زندگی میں، اگلے فیز میں یہ خدا کی ایکٹیویشن ہے، خدا کی مداخلت ہے، خدا اپنے کام کو جاری کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ آج رک جاتے ہیں تو اگلے دنوں میں، اگلے فیز میں بھی آپ رکے رہیں گے۔ ڈی ایچ اے، کتنے لوگ ڈی ایچ اے کو جانتے ہیں؟ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، کتنے فیز بن چکے ہیں؟ پہلے 1، پھر 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7، پھر 8، اور یہ 12 فیزز تک جائے گا۔ کیا کر رہے ہو؟ انویسٹمنٹ۔ ہم خدا کے بینک میں، خدا کے کھاتے میں انویسٹ نہیں کرتے، اس لیے بھوکے رہتے۔ ہم خدا کے کھاتے میں اپنی انویسٹمنٹ نہیں کرتے، اس لیے پروفٹ نہیں ملتا۔ ہم خدا کے کھاتے میں اس لائق طور پر خدا کو جلال نہیں دیتے، اس لیے ایکٹیویشن نہیں ہوتی۔ او بھائی، جب تک آپ اپنے اے ٹی ایم کارڈ کو مشین میں ڈال کے پن کوڈ نہیں لگائیں گے، وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوگا۔ جب تک آپ اپنے اے ٹی ایم کارڈ کے بارے میں انفارمیشن بینک کو نہیں دیں گے، ان کو فون نہیں کریں گے، وہ آپ کے اے ٹی ایم کارڈ کو ایکٹیویٹ نہیں کریں گے۔ ایکٹیویشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا کانٹیکٹ آسمان سے ہو۔ ایکٹیویشن کے لیے ضروری ہے کہ الہی مداخلت سے پہلے آپ خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ آپ کی زبان آپ کو اس قابل کرتی ہے
क्या आप अपने लिए मौजूद को हासिल करें। शुक्रगुजारी आपको इस काबिल करती है कि खुदा की मदाखलत आपकी जिंदगी में काम करे। और अगर हम चुप रहते हैं तो फिर आप मौजूद से भी महरूम रहेंगे। If no investment, no profit. हम क्यों आज दुनिया में पाकिस्तान की कलीसिया मसीही लोग इतने पिसे हुए हैं? हम इल्जाम खुदा पर दे देते हैं, खुदा को हमारी फिक्र नहीं। यहाँ पर तो कलीसिया से बड़ा बुरा सलूक किया जाता है। भाई मुल्क मिस्र में भी कलीसिया से बड़ा सलूक किया जाता था, लेकिन खुदा ने उनकी आवाज को सुना, उनके रोने और चलाने को सुना। उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। ना तो उन्होंने काली पट्टियां बांधी, ना सड़कों पर जुलूस निकाला, ना उन्होंने कोई जाकर एहतजाज किया। उन्होंने सिर्फ अपने खुदा के सामने अपनी जुबान खोली और खुदा ने उनकी आवाज को सुना और खुदा ने उनको रिहाई दी। आज अगर कोई हमारी मदद ना करे, हम उसे बुरा भला करना शुरू कर देते हैं। आज अगर हमारी कोई मदद ना करे, कोई कुछ ना दे, हम उसके खिलाफ जुबान खोलना शुरू कर देते हैं। आज अगर हमें कोई हमारे ना पूछे, हम कहते हैं एक ही थोड़ा पावरी, एक कड़ी मिनिस्ट्री, ये बट अपने आप है। No, this is not our job. Not our job. ये मसीही तरीका नहीं है, ये बिब्लिकल तरीका नहीं है। ठीक है, कोई करे गाल पर तमाचा मारे, उठा सम्मान दे। क्या लिखा है? दूसरा be humble, be humble, बर्दाश्त कर। अगर आप चाहते हैं आपके लिए मौजज़े हों, तो फिर इन्वेस्टर बने। स्पिरिचुअल इन्वेस्ट करें, फिजिकल इन्वेस्ट करें, फाइनेंशियल इन्वेस्ट करें। आप मिरेकल्स देंगे। आपकी जुबान आपको इस काबिल करती है कि आपके लिए मौजज़ा हासिल करें। बहन जी आप बहन की क्यों नहीं देती? बहुत सब बोला अभी बूढ़े ने बहन को जुबान तो कहता हालात बुरे ने, फिर हालात बुरे ही रहेंगे। जो कुछ तुम कहते हो वो तुम्हारे लिए माशाअल्लाह सारे एंटी कहते हैं हालात बुरे ने, और हालात बुरे में फिर हालात बुरे ही रहते हैं, क्योंकि आपकी जुबान ने आपके लिए मौजज़े जारी कर। और क्या मौजज़ा हुआ? गुर्बत का इकरार गुर्बत को ठहरा दिया। इसलिए the power and the purpose of thanksgiving, इन चीजों को अपनी जिंदगी में ले, ये बड़ा जरूरी। खुदा हमारे लिए क्या कर रहा है, इसके लिए अपने ईमान को ताज़ा करें और फिर देखें कि खुदा एक्टिवेशन की स्पिरिट को, पावर को आपके लिए जारी करेगा ताकि आप खुदा से हासिल कर सकें। लेकिन जरूरी है कि हम उस कोड़ी की माने जिसने शिफा पाई। हो सकता है कि उसके हाथों में शिफा थी और उसने महसूस किया और वापस आ गया, लेकिन जब वो वापस आया, शुक्रगुजारी की, खुदा को जलाल किया, बुलंद आवाज से पुकारा, उसने मुकम्मल शिफा पाई। आज अगर मुकम्मल शिफा पाई है, आपको चाहिए खुदा की इज्जत करें और शुक्रगुजारी पेश करें ताकि खुदा आपको शुक्रगुजारी की कुव्वत और शुक्रगुजारी का मकसद आपकी जिंदगी को उजागर करे। और इस मकसद और कुव्वत को लेकर आप हमेशा अपने खुदा को जलाल दें। खुदा आपके साथ हो और खुदा इस्लाम के वसीले आपको शुक्रगुजारी की कुर्बानियां चढ़ाने की कुव्वत बख्शे। आमीन।